My dear students, last time we discussed exercise 5.1, question number 1 and 2nd. In this video, we start question number 3. Look at question number 3. Open your book. Okay, students, ready for study? Okay. For the following APs, write the first term and common difference. So here 4 question is here and all the question in AP and we find the first term and common difference. Okay. So we solve the question number 2nd, -5, -1, 3, 7, and remaining 3 question in homework. Okay, sir. So start second question. So question number 3rd, second part is here -5, -1, 3, 7, and first term represent by a. So here first term is -5, so a equal to -5, and we find the common difference represent by d, small d, and formula is a2 minus a1. Okay, so a2 is here -1. Okay, so we write the -1 and minus is formula, and a1 is already -5, so we write in bracket. So -5 write in bracket. So -1 plus minus plus and here plus 5 and 1 is -1. So here one number is negative and one is positive, so we subtract them. So 4 is here. So a equal to -5 and d equal to 4. So it is answer. So student, remaining questions do yourself in homework. Next question number 4 is here. Question number 4, which of the following are APs? If they from an AP, find the common difference D and write 3 more term. तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमें सीरीज दे रखी है, जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर है, वो क्या AP बनाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, मतलब इनमें से कौन AP बनाता है? ओके, एंड इफ़ दे फ्रॉम ए AP, अगर ये AP बनाते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है एंड राइट द 3 मोर टर्म, और उसके आगे की 3 मोर टर्म भी फाइंड करनी है. तो हम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज हियर 2, 5/2, 3, 7/2, z. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन. ओके, फोर्थ का सेकंड पार्ट कर रहे हैं. 2, 5/2, 3, 7/2, z. हियर we find the common difference. Okay, so a2 minus a1 means a2 means 5/2 minus a1 means 2 upon 1, क्योंकि अपन में कुछ भी नहीं तो 1 लिखेंगे. LCM is here 2, so 2 divide 2 1 time 1 into 5 minus 1 divide 2 time 2 into 2 means 4, तो 1/2. तो आप ये LCM लेके सॉल्व करना तो आपको आता ही है. फिर नया कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a3 minus a2. a3 minus a2 means 3 is a3, 3 is a3, तो 3/1 and minus a2 means 5/2. So LCM is 2, so 1 divide 2 time 2 into 6, 3 into 6, minus 2 divide 2 1 time 1 into 5 and 1/2 is here. Next a4 minus a3. Okay, so we find the a4 minus a3. So a4 is 7/2 minus 3/1, so LCM is 2, 7 minus 6 is solution and 1/2 is here. So all the time common difference is same. Okay, means difference between the two consecutive term is same. तो यहाँ पे क्रम से जो टर्म है उनका डिफरेंस ऑलवेज टाइम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. ऑलवेज टाइम सेम आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है, मतलब ये किस में है? AP में. तो इस तरह से हमेशा अगर ऑलवेज टाइम कॉमन डिफरेंस सेम आए तो वो एक AP में होगा. तो हम इसका आंसर लिखते हैं. So a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to a4 minus a3. तो always time difference is same. So therefore the list of number from a AP, तो ये लिस्ट क्या है? AP में है. We find the common difference. कॉमन डिफरेंस d equal to क्या है? 1/2, क्योंकि हमने 1/2 निकाला डिफरेंस. 3 मोर टर्म, तो 3 आगे की टर्म निकाल रहे हैं, तो a5. तो a5 जो हमारी आएगी वो a4 प्लस d. ओके, तो a4 इज मतलब कि क्या हुआ? a5 निकालना मतलब a4 में कॉमन डिफरेंस को प्लस करेंगे, जो हमारी पिछली टर्म है उसको कॉमन डिफरेंस प्लस करें. तो a4 हमें पता था, a4 प्लस d, तो a4 इज 7/2 प्लस d मीन्स 1/2. सो LCM इज 2, 7 + 1, सो 8/2. तो कट करेंगे तो 4 आ गया.
A6 निकालेंगे तो A6 क्या आएगा, A5 प्लस डी। तो A5 प्लस डी मीन्स यहाँ पे A5 क्या है 4 और प्लस 1/2, तो 4 का अपन ने 1 लिया तो एलसीएम इज 2, 1 डिवाइड 2, 2 टाइम 2 इंटू 4 8 प्लस 2 डिवाइड 2 1 टाइम 1 इंटू 1 1, 9/2 इज हियर एंड A7 A6 प्लस डी, तो 9/2 प्लस 1/2, सो एलसीएम इज 2 एंड 9 प्लस 1, so 10/2, so answer is 5. So answer is here, therefore list of number are in AP में है list number of list, common difference is 1/2 and 3 more term are 4, 9/2 and 5. So we find the 3 more term. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द थर्ड क्वेश्चन -1.2 कोमा -3.2 comma -5.2 comma -7.2 z. So this list of number in AP are not. तो list of number in -1.2 -3.2 -5.2 7 -7.2 z. So here we find the difference A2 minus A1. A2 means -3.2 minus, and first A1 is already minus, so we write in bracket -1.2, so -3.2 and माइनस क्या होगा प्लस 1.2, एंड हम डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं। पॉइंट के बाद 2 से 2 तो 0 हो जाएगा, और 3 से 1 जाएगा तो 2 आएगा, और माइनस की ग्रेटर नंबर है तो माइनस का 2 आएगा, तो -2.0 आएगा। तो 0.0 को हम हटा चुके हैं, तो -2 है। फिर नेक्स्ट A3 माइनस A2 जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा A3 क्या है -5.2, माइनस A2 हमारा माइनस में है तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5.2 प्लस 3.2, तो यहाँ पे -2 आया। फिर इसी तरह से A4 माइनस A3 निकालेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा A4 निकाला -7.2 एंड -5.2, तो प्लस हो जाएगा, तो -2 आया। तो यहाँ पे सो हियर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, तो यहाँ पे सारे डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस। तो देयर फॉर लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन AP, तो यहाँ पर भी ये लिस्ट किस में है, AP में है। कॉमन डिफरेंस D क्या आया -2, क्योंकि हमारा डिफरेंस हमने निकाला था। नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे तो A5 क्या आएगा A4 प्लस D, A4 क्या था -7.2 प्लस D मीन्स माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2, सो -7.2 एंड प्लस -2, सो इनको माइनस के 8 हो जाएंगे, तो ये पॉइंट के आगे है -2, तो डेसिमल में ये 7 में जुड़ेगा, तो -9.2 हमारा आंसर आएगा। इससे पहले से A6 निकालेंगे, A5 प्लस D आएगा, तो A5 क्या आया -9.2 प्लस ब्रैकेट में -2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9.2 -2 तो -11.2। A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D, A6 क्या आया -11.2 प्लस -2 प्लस माइनस तो -11.2 -2 तो -13.2। तो आंसर हो गया कि कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म आर -9.2 -11.2 -13.2। ओके, और हम एक आंसर पहले भी लिख चुके हैं ये वाला कि ये AP में है, तो हमारे दोनों आंसर हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 दैट। ओके, तो स्टार्ट 5th क्वेश्चन। वी फाइंड डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 इज हियर 3 प्लस √2 इज A2 -3 इज A1, सो -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो जब 3 से 3 कैंसिल होगा तो हमारा √2 बचेगा। फिर A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 √2 A3 है, माइनस A2 क्या है 3 प्लस √2, तो इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया। फिर 3 प्लस 2 √2 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 एंड प्लस माइनस क्या होगा -√2, तो 3 से 3 कैंसिल वापस से, और 2 √2 से 1 √2 गया, तो यहाँ आगे वाले नंबर माइनस होंगे। जैसे यहाँ पे 2 है प्लस का, और यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, √2 के आगे क्या है 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ग्रेटर नंबर प्लस का है तो +1, तो 1 लिखा नहीं जाता, तो केवल √2 आएगा। तो ये हमने
इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है 9th में, तो ये आप कर सकते हो। तो √2 आंसर है, डिफरेंस आया। फिर A4 माइनस A3 मीन्स A4 क्या है 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 क्या है 3 प्लस 2 √2। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस एंड प्लस माइनस मतलब माइनस आगे है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2 √2। अब 3 से तो 3 कैंसिल और 3 √2 से 2 √2 गया तो आगे के नंबर माइनस होते हैं, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 1 √2। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऑलवेज टाइम सेम आ रहा है, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम AP, तो ये भी लिस्ट हमारी AP में, हमने अभी तक सारे क्वेश्चन AP वाले किए, अब हम विदाउट AP वाला भी एक क्वेश्चन करें। तो जब AP में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड किया तो √2। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने, तो A5 इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या था 3 प्लस 3 √2 प्लस D क्या है √2। तो √2 यहाँ पर भी है, ये भी है, तो यहाँ पे आगे के नंबर प्लस होंगे, तो 3 और 1 4 हो गए, तो 3 प्लस 4 √2, क्योंकि इरेशनल नंबर में इरेशनल प्लस नहीं होगा, लेकिन इरेशनल में इरेशनल प्लस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट वाला सेम है। तो ये 3 प्लस 4 √2 आया। अब A6 निकालें तो A5 प्लस D, तो A5 क्या है 3 प्लस 4 √2 प्लस D क्या है √2। तो वापस से वही वाली बात आ गई कि √2 में √2 वाला प्लस होगा, तो 4 में 1 प्लस होगा क्योंकि आगे 1 है, तो 3 प्लस 5 √2 हो गया। फिर A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D, तो A3 प्लस 5 √2 तो है, प्लस D क्या है √2, तो यहाँ पे 5 और 1 क्या हुआ 6, तो 3 प्लस 6 √2 हो गया। इसके बाद हम आंसर लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू √2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म आर 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम 6 वाला। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैश। ओके, सो इट इज AP और नॉट। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हैं, तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 मीन्स A2 क्या है 0.222 टाइम है माइनस 0.2, तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 0 से 0.2, फर्स्ट वाले प्लेस से फर्स्ट वाला 2 हो जाएगा तो 0, और बाद वाला सेकंड टाइम 2 है, तो यहाँ पे 0.02 आया। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो आएगा 0.002 आया। तो होगा केवल ये दोनों ही अगर अलग आ रहे हैं तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं, हमने फिर भी यहाँ पे तीसरा निकाला है। तो दो इक्वल नहीं आ रहे तो हमने केवल दोनों को कंपेयर कर लिया कि ये इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा कि हमें पता चल गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हम देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फ्रॉम एन AP, तो ये हमारी लिस्ट जो है वो AP में नहीं है, तो हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ओके 12 पार्ट, √2, √8, √18, √32 डैश एंड रिमेनिंग क्वेश्चन डू योर सेल्फ। सो वी फाइंड द डिफरेंस A2 माइनस A1, तो √8 √2, क्योंकि A2 हमारा A1 हमारा √2 है, तो √8 में से √2 कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं अगर फैक्टर करें तो हो सकता है कि कभी कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे 8 को फैक्टर करें तो 2 3 टाइम आएगा। टाइम फैक्टर आपको निकालना आता है, माइनस √2 तो रहेगा। अब यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो ये पेयर जो है इससे बाहर आया तो 2 √2 माइनस √2 है, तो ये √2 वाले सेम हो गए, तो आगे के नंबर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो प्लस का 1 बचा क्योंकि ग्रेटर नंबर 1 गया, तो √2 1 लिखा नहीं जाता, तो √2 डिफरेंस आया। इस तरह से A3 माइनस A2 करेंगे तो माइनस √18 में से √8 गया, तो √18 के भी फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 3 × 3 आया। अब माइनस 8 का तो हमें पता है कि 3 टाइम 2 आएगा, फिर यहाँ से भी 3 का पेयर बन रहा है, 3 बार आया तो 3 √2 बचा, क्योंकि √2 अंदर बचा, माइनस यहाँ से 2 बाहर आ गया तो 2 √2, तो 3 में से 2 गया तो 1 √2 बचा, तो ये हमारा डिफरेंस आया। फिर A4 माइनस A3, तो √32 माइनस √18 आएगा, तो 32 के फैक्टर करें तो 2 5 टाइम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पेयर 2 टाइम बने, 2 2 बार बाहर आ गए, और ये हमारा डायरेक्ट हमने
3√2 लिखा क्योंकि हमें पता है कि 18 का √18 का 3√2 आया। इसके बाद 2 to 4√2 माइनस 3√2, तो 4 में से 3√2 गया तो 1√2 बचा, तो यहाँ पे ये आया। तो यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस ऑलवेज टाइम इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो देयर फॉर द लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी, तो ये भी एक एपी में है। तो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू √2, और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो A5, तो A4 प्लस D मीन्स √32 A4 है, प्लस डिफरेंस क्या है √2। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2, हमने आगे देखा है तो 4√2 आता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर प्लस √2, तो 4 और 1 5√2 हो जाएगा। और 5 को हमें अंदर ले जाना क्योंकि हमारी जो AP है वो सारे रूट के बाहर कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें इसको भी अंदर ले जाना है। तो हम जानते हैं जब कोई अंदर जाएगा तो वो पावर में बनेगा, तो 5 जब अंदर जाएगा तो 5 की पावर 2 मतलब 25 आएगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब 5 अंदर गया तो 25 इंटू 2 हो गया तो 50 हो गया, तो √50 हो गया। फिर A6 निकालेंगे हम, A6 A5 प्लस D, तो √50 प्लस √2, तो 50 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा 5√2 क्योंकि हमने इसी को चेंज किया था, प्लस √2, तो 6√2, 6 को अंदर ले गए तो 36 इंटू 2 हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। इसी तरह से A7 A6 प्लस D, तो √72 प्लस √2, 72 का सिंपलेस्ट फॉर्म 6√2 होता है, तो ये 6 और 1 7√2 हो गया। 7 को अंदर ले गए तो 49 इंटू 2, तो √98। तो देयर फॉर कॉमन डिफरेंस इज √2 एंड 3 नेक्स्ट टर्म √50 √72 √98। तो हमारे हो गए, हमने इसमें अधिकतर क्वेश्चन AP वाले किए हैं। AP नॉट वाला भी एक क्वेश्चन किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस सेम ना है तो वो AP में नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नई एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।